Yeah, I spit raps like a heart attack, fast fatal heart impact, past painful scars, in fact I blast tasteful bars and packs. I back up my actions, fact don't ask, grab reactions, jacked attack with every word, then act with class as they hear me snap. I got nothing to lose, cause I fought and felt the bruise, now I'm not the one confused, call the shots and they produce, I ain't lost, I'm finally loose, pick a new silver excuse, I need the views to boost me to a new abuse of being used. Everybody wants a piece now, y'all can rest in peace now, you're dead to me so peace out, remember you're just freaked out, get ready for defeat now, I'm gonna make you bleed out, listen on repeat now and weed out all the weak now. Get up and make a change, don't remember yesterday, if you got something to say, speak your mind before your grave, cause your life is yours to save, ain't nobody gonna change, everybody stays the same, so be different, make a name, like huh? a soldier, I keep on moving forward, always getting closer, I march until it's over, and just like a soldier, I keep on moving forward, always getting closer, I march until it's over, and just like a soldier, I keep on moving forward, always getting closer, march until it's over, and just like a soldier, I keep on moving forward, always getting closer, march until it's over. It's ridiculous, I'm spitting this meticulous and limitless, while others out there spitting shit got hits up on the charts and shit. I see why other artists quit, cause people don't reward your shit, they love to hate but hate to live. Society, you swing and miss, and honestly I get it, promise me you won't regret it, wasting energy, forget it, don't look back, go on and get it, bite the bullet just a bit, bite your tongue and don't say shit, make your actions hard to miss, be a legend not a myth. Yeah. It's obnoxious that I'm conscious, rapping honest as promise, try to harness, as an artist stay modest, it's a long quest, I will not quit till 10,000 people going off when I drop this, I gotta make it now, swear to God I'm breaking out, swear to God I'll take a bow, stand the stage with the crowd, cause I got it figured out, I'm just honest and I'm loud, saying modest but I'm proud, no I never had a doubt, Just like a soldier, I keep on moving forward, always getting closer, I march until it's over, and just like a soldier, I keep on moving forward, always getting closer, I march until it's over, and just like a soldier, I keep on moving forward, always getting closer, I march until it's over, and just like a soldier, I keep on moving forward, I march until it's over. जो भी सक्सेस डे आपने जो अटेंड किया कैसा रहा, मजा आया? फिर बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत मजा आया। क्या क्या चीजें आपने सीखी आज 4-5 घंटे की ट्रेनिंग थी, उसके अंदर क्या क्या सीखा आपने, बताएंगे थोड़ा? सबसे बड़ी बात इसमें स्माइल के साथ काम करना है, कंसिस्टेंसी से काम करना है, और जो बोल लोग उसे पूरे दिल से काम करना है। यस, अच्छा एक और बात, अगले 4 महीने में कौन सा प्लान है आप सबका? क्या बनना है आपने? यस, मैनेजर बनना है मेरा। यस, आपके रिव्यूज पूछ रहे कि कैसा रहा सेशन, है ना? से तो आज आपने सक्सेस डे अटेंड करा 3 से 4 घंटे का, तो उसके अंदर क्या क्या चीजें आपने सीखी है और मजा आया ट्रेनिंग लगा के? क्या क्या सीखा बताएंगे सर थोड़ा? जैसे कि यहाँ पे मेरे को माइंडसेट का जो मेरे को पहले जो मेरे को दिक्कत थी, तो वो मेरे को सीखने को मिला कि मैंने अब क्या गलती कम करनी, जो मेरे से गलती हो रही थी उसे अब सुधारना। ठीक है, तो अगले सक्सेस डे जो होगा उस पे क्या टारगेट लिया आपने, क्या लेवल पे आएंगे आप? मैनेजर। क्या बात है जी, बहुत बढ़िया जी। ओके हाँ जी, तो अभी जो सेशन हुआ था कैसा रहा आपका सेशन? मजा आया फिर? और क्या क्या सीखा आपने आज? बताएंगे थोड़ा क्या क्या सीखा, क्या क्या नई चीजें मिली आपको? इंसेंटिव्स के बारे में भी पता चला है, इंसेंटिव के बारे में, काफी क्वालिफिकेशन के बारे में, काफी स्किल्स वगैरह के बारे में सीखने के लिए मिला है, मनदीप सर की नॉलेज काफी मिली। अच्छा, तो अगले 4 महीने में क्या प्लान है आपको, क्या बनना है फिर अपने को? क्या बनना है? क्या बनना है? यस। जो सेशन जो अपना अभी हुआ था, सेशन कैसा रहा फिर अपना? मतलब आज जो हमने सेशन को अटेंड किया ना, तो इस सेशन में बहुत बढ़िया खुद भी इम्प्रूव कर सकते हो और हमारी टीम के अंदर भी बहुत बड़ी सक्सेस ला सकते हो। और जब हम
डिसीजन बनाते और लोगों का डिसीजन बनाते ना, तो 100% हमें सक्सेस मिल। बिल्कुल बिल्कुल। यस। अच्छा, अगले 4 महीने में क्या बनना है फिर? बस मैनेजर बनना है। अभी जो नेक्स्ट इवेंट होने वाला है तो मैनेजर बन के आना है। बिल्कुल बिल्कुल। यस। आज हमें ना माइंड से मैनेजर बने हैं, मतलब कि हमें पता चल चुका है अभी इंडस्ट्री कितनी बड़ी है, मतलब पहले ही पता था वो तो, मतलब कि आज ना मतलब बहुत कुछ सीखने को मिला। और फर्स्ट ऑफ ऑल मनदीप सर को सारा कुछ प्रोवाइड करता है। 1 साल 2 साल के अंदर वो 6 फिगर मतलब 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए की इनकम जनरेट कर सकता है। Yes. तो इतना बढ़िया हमारा Yes, system yes. है, तो हमें प्राउड फील होता है। यस यस, ठीक है, ओके, चलो। आज का सक्सेस डे कैसा लगा आपको? सर दी बेस्ट ट्रेनिंग बढ़िया लगा। और क्या क्या चीजें सीखी आपने आज? नई चीजें क्या सीखने को मिली यहाँ से? सर वहाँ पे हमें बहुत सारी चीजें सिखाई है, जैसे टीम को रिटेन कैसे रखना है, ठीक है। और मतलब काफी सारी दिक्कत आती है, सुपरवाइजर बनने के बाद हमें दिक्कत करते हैं कि अपने डायरेक्ट वर्क नहीं कर पाते हैं, है ना। तो उसमें ये चीजें बताएंगे, अपने डायरेक्ट वर्क को कैसे मैनेज करना है, टीम वर्क को कैसे मैनेज करना है, दोनों को प्रॉपर तरीके से मैनेज करके अपने एक अच्छा चेक कैसे प्रिंट करना है। और सबसे बेस्ट बात तो ये थी कि आज हमारे महागुरु जो मनदीप कंबोज सर है, ठीक है, उनको सुनने का मौका मिला, तो मतलब बहुत बेस्ट ट्रेनिंग थी आज। तो क्या टारगेट लिया कि अगले सक्सेस डे में कौन से लेवल पे अपने आएंगे और रिकॉग्नाइजेशन मिलनी चाहिए हमें? कौन से लेवल का डिसाइड करा आपने? सर मेरा टारगेट तो मैनेजर बनने का, आपकी टीम में ट्रेन मैनेजर लेके ठीक है, आऊंगा। ओके जी, ओके, बेस्ट ऑफ। थैंक यू। ठीक है सर तो हाँ जी लेडर्स, गुड इवनिंग जी सभी को। तो कैसे हैं जी आप सभी? बढ़िया। तो हाँ जी, गुड इवनिंग सभी को। क्या हाल है, चाल है जी आप सभी के? बढ़िया, ऑल गुड। सो रेडी हैं आज के सेशन के लिए? सो वेलकम आप सभी का आज के सबसे पहले आज के सेशन में, राइट। सो ऑलरेडी सारे फुल रेडी होंगे आज के सेशन के लिए, राइट। ये चीज़ है जो आज का मेरा टॉपिक है, मेन है ना, जर्नी सेशन का, कि मेरी फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के अंदर स्टार्टिंग कैसे हुई, राइट। मेरी लाइफ में फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स बिजनेस कैसे आया, इस बिजनेस से पहले मैं क्या करता था, राइट। सो मेरा नाम वरिंदर सिंह है, मैं चंडीगढ़ के पास का रहने वाला हूँ। फॉरएवर लिविंग के अंदर 9 साल की जर्नी कंप्लीट हो चुकी है। मेरी अगस्त मंथ की ही ज्वाइनिंग है, ये जो भी अगस्त 2024 चल रहा है, तो मेरी अगस्त मंथ की ही ज्वाइनिंग है। और 15 अगस्त 2015 को मैंने इस बिजनेस के अंदर बिजनेस की स्टार्टिंग करी थी, राइट। ये चीज है। सो उस टाइम के अंदर मैं जॉब कर रहा था। इस बिजनेस से पहले मैंने मैकेनिकल लाइन से स्टडी करी है, मैकेनिकल लाइन से डिप्लोमा किया था। उसके बाद फिर मैंने अपना बीटेक भी करनी स्टार्ट करी, लेकिन बीटेक वगैरह मेरी नहीं कंप्लीट हुई, है ना। वो क्यों नहीं कंप्लीट हुई? क्योंकि मैंने एक वहां पे एक डिसीजन बना लिया था कि नहीं यार, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स को ही मैंने फुल टाइम करना है, राइट। ये चीज है कि मेरा यहीं पे फ्यूचर है, मेरा यहीं पे करियर है, यहीं पे अब सब कुछ है, राइट। ये चीज है। सो जैसे आपने इस बिजनेस को आज देखा है, कल देखा है, 4 दिन पहले, 5 दिन पहले, 1 हफ्ता पहले, 1 महीना पहले, राइट। मैं अक्सर एक चीज बोलता हूँ कि इस बिजनेस में ना, ये बिजनेस करने से पहले ना अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये बिजनेस आपको क्या कुछ दे सकता है। क्योंकि इस बिजनेस के अंदर ना जी, जैसे अभी आप आए होंगे 10,000 कमाने के लिए, 15,000 कमाने के लिए, 20, 25, 30,000 कमाने के लिए, लेकिन इस बिजनेस के अंदर ना 360 डिग्री, है ना, 360 डिग्री आपकी लाइफ चेंज होनी है जी, राइट। लेकिन वो कैसे होगी? वो होगी आपके एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन से। अभी तक आपने ना जितने भी लीडर्स को सुना है, राइट, जितनी भी अभी तक आपकी ट्रेनिंग्स हुई होंगी, आपने ऑफलाइन ट्रेनिंग्स को अटेंड करा होगा, ऑनलाइन ट्रेनिंग्स को अटेंड करा होगा,
है ना, जिनको सुन के आपको बहुत ज्यादा मोटिवेशन, है ना, मोटिवेट हुए होंगे, एक इंस्पिरेशन आई होगी, है ना, कि यार मुझे भी इन जैसा बनना है, मेरे को भी इस इनकम तक पहुंचना है, मैंने भी ये अचीवमेंट्स करनी है। लेकिन इससे पहले जो ना मेन पॉइंट है, जो सबसे मेन पॉइंट है, वो है स्ट्रॉन्ग डिसीजन। कि उन सभी ने ना एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया था फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स को जब उन्होंने देखा, तो अब मेन चीज ये निकल के आती है कि क्या आपका स्ट्रॉन्ग डिसीजन है फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स को करने का। अभी आप स्टडी कर रहे हो, बीकॉम कर रहे हो, बीबीए कर रहे हो, बीसीए कर रहे हो, बीए कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, है ना, आपकी जॉब है, आपका बिजनेस है, कुछ भी कर रहे हो, ठीक है, वेल एंड गुड है। लेकिन उसके साथ साथ अभी आप इस बिजनेस को पार्ट टाइम करने का, है ना, आपने डिसीजन लिया है, या आप इस बिजनेस को फुल टाइम करने का आपने डिसीजन लिया है। क्योंकि हमारा बिजनेस है ना काफी तरीके से होता है, सम टाइम से भी होता है जो आपने कभी नहीं करना, है ना, सम टाइम होता है, लेकिन जो आपने कभी नहीं करना, ना इससे कभी रिजल्ट आएगा, ना इससे कभी हमारी अचीवमेंट होगी, ना हमारी इससे ग्रोथ होगी। ना कि फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स दुनिया का कोई भी काम है कभी भी हमने सम टाइम नहीं करना। सम टाइम के बाद आता है जी पार्ट टाइम, ठीक है, वेल एंड गुड है, स्टार्टिंग अंदर हर बंदा पार्ट टाइम आता है, उसके बाद फुल टाइम, उसके बाद ओवर टाइम, उसके बाद सुपर टाइम, ठीक है ना। मैं अगर अपनी बात करूं, मैं फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स को जी सुपर टाइम करता हूं, क्योंकि मुझे क्लियर है कि यार फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स से बेस्ट प्लेटफॉर्म इस दुनिया में कोई है नहीं है। मुझे नहीं लगता कि मैं अगर मार्केट में कहीं पे काम करता, आज मैं फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स से जितनी इनकम ले रहा हूँ, मेरी मार्केट में कभी इतनी इनकम होनी थी, ठीक है ना। ऐसी लाइफ कभी पॉसिबल होनी ही नहीं थी जो फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स में आके पॉसिबल होगी, राइट। सो आपकी भी लाइफ है ना सेम पॉसिबल हो सकती है, ठीक है ना। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको सबसे पहले एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना पड़ेगा। स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने के बाद क्या आप यहाँ पे मेहनत करने के लिए रेडी हो, राइट। जैसे मेरी उस टाइम में जॉब चल रही थी, है ना, मैं आपको दिखाऊंगा अभी स्क्रीन शेयर करके थोड़ा आगे सारा कुछ, ठीक है ना। तो मेरी जॉब चल रही थी पंजाब के अंदर, एक कंपनी है स्वराज कंपनी, जहाँ ट्रैक्टर वगैरह बनते हैं, वहां पे मैंने जॉब करी, 1.25 साल मेरी वहां पे मैंने जॉब करी है। 8,000 मेरी वहां पे सैलरी थी। तो जब मेरी जॉब चल रही थी, तो उसके जॉब के करते करते ही मेरी लाइफ के अंदर फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स आई, है ना। मेरे सीनियर है नगिंदर सर, उन्होंने मेरे को इस बिजनेस के बारे में बताया। हम एक ही गाँव के रहने वाले हैं, पड़ोसी हैं, है ना, एक ही स्कूल में हम पढ़े हैं, एक ही गाँव के हम रहने वाले हैं, पड़ोसी हैं। तो उन्होंने मेरे को जब इस बिजनेस के बारे में शेयर किया कि यार एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, बिजनेस है, ठीक है ना, कि भाई तू अपनी जॉब के साथ साथ पार्ट टाइम कर सकता है। तो पैसे आते किसको बुरे लगते हैं कि हाँ ठीक है यार, अगर उसके साथ साथ 2-3-4 घंटे काम करके पैसा आता कर लेते हैं। तो उस टाइम के अंदर क्या हुआ, संडे मेरी छुट्टी होती थी, संडे मेरी जॉब से छुट्टी होती थी, संडे मैं मोहाली आरडीओ गया, ठीक है ना, मोहाली जो हमारा ऑफिस है फॉर एवर लिविंग का, वहां पे मैं गया। वहां पे मेरी पीपीटी हुई, प्रेजेंटेशन हुई, जैसे आपको ऑनलाइन हमारा बिजनेस कॉन्सेप्ट समझाया होगा, ऑफलाइन समझाया होगा, जिस तरीके से, इसी तरीके से मेरी बिजनेस की प्रेजेंटेशन हुई, पीपीटी हुई, है ना। अब पीपीटी होने के बाद आपको ना एक लेवल बताया जाता है हमारे बिजनेस के अंदर, ड्रीम लेवल, मैनेजर लेवल। अब ड्रीम लेवल मैनेजर के ऊपर आपको एक इनकम बताई जाती है कि आपको 60-70 हजार रुपया महीने का आना स्टार्ट हो जाता है। और 60-70 हजार के बाद आपकी जो इनकम है वो उसके बाद नो लिमिट है ना। मेरे को जब 60,000 इनकम बताई गई ना, मेरे को आज भी वो दिन याद है, आज से 9 साल पहले, है ना, कि मैं अपने सीनियर अपलाइन को नगिंदर सर को एक चीज बोल रहा था। मैं कहा यार भाई मुझे 60-70 हजार रुपये नहीं चाहिए, है ना। मैं कहा मुझे 30,000 महीने का आ गया ना यार, मेरे लिए बहुत, है ना। क्योंकि भाई जॉब कर रहा था, वहां पे एक चीज क्लियर हो गई थी कि यार, है ना, लाइफ क्या सोची थी और क्या बन गई। क्योंकि हर बंदा ना जब स्टडी कर रहा होता है, स्टडी करते करते हर बंदे को होता है कि पता नहीं भाई मेरे को इतनी तगड़े लेवल की नौकरी मिल जाएगी और मैं पता नहीं क्या बन जाऊंगा, या मैं पता नहीं क्या बन जाऊंगी। अब जिस तरीके से हमने सोचा होता है उस तरीके से हमें मार्केट में काम मिलता नहीं, उस तरीके से मार्केट में हमारी सैलरी लगती नहीं। फिर उसके बाद वही चीज है कि हमारे जो सपने बनाए होते हैं वो टूटते हैं, वो खत्म होते हैं, है ना। और कोई भी बंदा इस दुनिया में नहीं चाहेगा कि मेरे ड्रीम्स है वो कभी खत्म हो। ड्रीम्स हमेशा जिंदा रहने चाहिए। ड्रीम्स जिंदा है, बंदा जिंदा है, ठीक है ना जी। ड्रीम्स जिंदा रखोगे, जिंदगी जीने में मजा आएगा, है ना। और हार्डवर्क करने में मजा आएगा, ठीक है ना। ये चीज है। सो अभी मेन चीज यही है कि फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स, ये आपने जो प्लेटफॉर्म देखा है, अगर इस बिजनेस के अंदर आप जल्दी से जल्दी सक्सेस होना चाहते हो, आप जल्दी से जल्दी 1 लाख इनकम को क्रॉस करना चाहते हो, ठीक है, मैं उसका एक आपको पॉइंट बता देता हूँ कि वो कैसे हो सकता है। जल्दी आप मैनेजर कैसे बन सकते हो, जल्दी आप लेवल अप कैसे कर सकते हो, जल्दी आपकी लाखों 1 लाख प्लस इनकम कैसे हो सकती है। आपको कोई ना एक ऐसा रीजन ढूंढना होगा कि भाई ये रीजन है जिसकी वजह से मुझे फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स करनी है। हर बंदे का अलग अलग रीजन है। जैसे मेरा एक रीजन ये भी था, मेरी जब एज 18-19 साल थी, मैं हमेशा ये चीज सोचता था कि यार मेरे घर वालों ने मेरी पढ़ाई पे बहुत पैसे लगा दिए हैं, अब मैं इन पैसों को पूरा कैसे करूंगा।
है ना, मैं इन पैसों को वापस कैसे करूंगा अपने घर वालों को। तो उस टाइम में ये होता है कि नौकरी कर लूंगा, नौकरी करके वापस वगैरह ये कर दूंगा, लेकिन वही चीज है कि नौकरी से चीजें नहीं होती। लाखों रुपया आपके घर वालों ने भी आपकी स्टडी पे लगा दिया होगा, लाखों रुपया मेरे घर वालों ने भी मेरी स्टडी पे लगा दिया था, ठीक है ना। तो वहां पे एक ही चीज होती है कि एक रीजन चाहिए होता है। एक चीज और आपको बताऊंगा, जितने लोग अभी आप मेरे को सुन रहे हो ट्रेनिंग के अंदर, है ना, हर बंदे को अपने घर के हालात पता होते हैं, है ना, कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे कैसे पढ़ाया है, कैसे, है ना, शुरू से लेके अभी तक, स्कूल मेरी लाइफ, कॉलेज मेरी लाइफ, है ना, छोटे से लेके इतने बड़े तक, है ना, मेरे घर वालों ने कैसे मेरे को पढ़ाया है, सारा कुछ कैसा अरेंजमेंट किस तरीके से करा है, राइट। अभी अगर किसी के घर में ये चीज है ना, वैसे तो ना हो कभी भी, लेकिन फिर भी, है ना, ये चीज है कि अगर किसी के फादर साहब के सर पे कोई लोन है, कोई कर्जा है, कितने का भी हो सकता है ना, और हर बंदे को पता होता है कि हमारे घर में कितना कर्जा है, हमारे घर में कितना लोन है। तो इस टाइम ना आपको घूमना फिरना बंद करके, फन शन बंद करके, इंजॉय वगैरह बंद करके, यारों दोस्तों के साथ गेड़ियां शेड़ियां बंद करके ना, अपने फादर साहब के साथ मिलके वो कर्जा उतरवाना चाहिए, वो आपको हेल्प करनी चाहिए कि मैं भी यार अपने फादर साहब के साथ, है ना, और हेल्प करूं उनकी कि वो कर्जा उतरे। लेकिन आज के टाइम में ये चीजें उल्टी हैं जी। आज के टाइम में बंदा इन चीजों को इतना सीरियस नहीं लेता। हर बंदे को आज के टाइम में एंजॉय करना है, हर बंदे को, है ना, नई थार लेनी है जो 15 अगस्त को लॉन्च हुई है। थार लो, फॉर्च्यूनर लो, एमजी हेक्टर लो, क्रेटा लो, वरना लेना है वरना लो, जौन सी गाड़ी लेनी है वो लो। लेकिन उससे पहले अपनी लाइफ के अंदर ये चीज सोचो कि मैं अपनी लाइफ के अंदर सेटल कैसे होऊंगा, मेरी इनकम किस तरीके से अच्छी होएगी, ठीक है ना, ये चीज है। मतलब एक चीज और आपको बताता हूँ, सोशल मीडिया का जमाना है, आप सभी चलाते हैं, हम सभी सोशल मीडिया चलाते हैं, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, है ना, स्क्रॉलिंग हमारी चलती है, यूट्यूब वगैरह पे बहुत सारी वीडियोस आप देखते होंगे। आज के टाइम में ना लोगों का क्वेश्चन पता कैसे है, जैसे ड्रीम इलेवन वगैरह पे लोग टीमें बना रहे हैं, ड्रीम इलेवन वगैरह पे टीमें बना के लोग करोड़पति बनना चाहते हैं, ठीक है ना। ये चीज आज के टाइम में लोगों की क्वेश्चनिंग इस तरीके से है, 15-16 साल की एज है जिनकी, 17 साल की एज है, पता क्या क्वेश्चनिंग है, किस क्या क्वेश्चन करते हैं, मुझे ये बताओ 20 साल की एज में मिलीनियर कैसे बना जाता है। मैं ये नहीं कह रहा नहीं बन सकते, बन सकते हैं। हमारी फॉरएवर लिविंग में, टीम फायर में कितने सारे लोग हैं जो 20 साल की एज के अंदर मिलीनियर बने हैं। 18 साल में उन्होंने बिजनेस स्टार्ट करा, 19 साल में वो मैनेजर बन गए, 1 साल के अंदर उनकी इनकम 1 लाख प्लस हुई, उनकी 10 लाख इनकम हुई, वो मिलीनियर बन गए और उनको ऑलरेडी मिलीनियर की ट्रॉफी मिल चुकी है। लेकिन ठीक है, अच्छा है, यहां तक ठीक है कि 20 साल की उम्र के अंदर मिलियनर कैसे बना जाए। नेक्स्ट, 22 की एज के अंदर मेरी लाइफ के अंदर टाइम फ्रीडम कैसे आए, मेरी लाइफ के अंदर फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे आए, और 25 की एज के अंदर मैं रिटायरमेंट कैसे हूं, है ना। तो अब यहाँ पे एक चीज मतलब समझने वाली है, अंडरस्टैंड करने वाली है, अंबानी, अडानी, रतन टाटा, बिरला, मार्क बिल गेट्स, इलन मस्क, जेफ बेजोस, और बहुत सारे लोग जितने मतलब बहुत अमीर हैं, उन बंदों को सालों साल हो गए हैं यहाँ तक पहुंचने में। हम कैसे ये सोच सकते हैं कि हम रातों रात अमीर बन जाएंगे, ठीक है ना। सबसे पहले अमीर बनने के लिए एक चीज तो क्लियर है कि आपको एक सही प्लेटफॉर्म चाहिए होता है, ठीक है ना, ये चीज है जो कि आपको ऑलरेडी मिल चुका है, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। हम हार्ड वर्क करने के लिए रेडी हैं, हम जॉब करते हार्ड वर्क करते, हम बिजनेस करते हार्ड वर्क करते, हम कुछ भी करते भाई, हम कनाडा जाते, ऑस्ट्रेलिया जाते, न्यूजीलैंड जाते, कहीं भी जाते, हम हार्ड वर्क करते, हमने हार्ड वर्क करना बनता था। और वो ही हार्ड वर्क आप यहाँ कर लो, जो यहीं पे वो हार्ड वर्क करके एक टाइम जब आपके नेटवर्क में जाके स्मार्ट वर्क होगा, ठीक है ना, तो आपको मैं सच बताऊं, हमने, हमारी मदर ने, हमारे फादर ने, हमारी फैमिली ने कभी रात को वो सपना भी नहीं लिया होगा कि हमारी लाइफ ये पॉसिबल थी, जो लाइफ फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में पॉसिबल हो जाती है, ठीक है ना, ये चीज है। सो मैं जैसे आपको अपनी जर्नी बता रहा था, ठीक है ना, सो मेन वहीं पे चलते हैं हम दोबारा घूम के टॉपिक पे। मतलब इन चीजों से थोड़ा बाहर आओ कि 22 साल के अंदर, 22 साल की एज में टाइम फ्रीडम कैसे आएगा, फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे आएगा, 25 की एज में रिटायरमेंट कैसे हो जाऊंगा। यार ये कोई पिक्चर थोड़ी चल रही है, कोई मूवी थोड़ी बन रही है ना। जैसे कि पिक्चर के अंदर स्टार्टिंग में बताया जाता है कि इसमें सारी चीजें जो बताई जा रही हैं काल्पनिक है, तो ये सारी चीजें काल्पनिक ही लगती है, ठीक है ना। थोड़ा फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट के अंदर हमें लॉन्ग टर्म विजन लेके आना है। मैं तो आपको बोलूंगा कि आप लाइफ टाइम का विजन लेके आओ कि मुझे लाइफ टाइम फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स करनी है, क्योंकि इस बिजनेस के अंदर सिंपल सी चीज है कि बिजनेस ये हम अपने लिए तो बिल्ड नहीं कर रहे। आज आप अपने लिए बिल्ड कर रहे हो, लेकिन एक टाइम जाके जब आपकी बहुत अच्छी अर्निंग हो जाएगी, जब आपका बहुत अच्छा नेटवर्क हो जाएगा ना, तब हमारे माइंड में एक थॉट आएगा कि अभी ये मैं बिजनेस अपनी जनरेशन के लिए कर रहा हूँ।
क्योंकि मेरे बाद मेरा बिजनेस किसको जाना है, मेरी जनरेशन को ही तो जाना है ना आगे, ठीक है ना। ये चीज है। पुराने टाइम को अंदर सरकारी, मतलब आज भी लोग सरकारी जॉबों की तरफ भागते हैं, पुराने टाइमों में लोग गवर्नमेंट जॉब की तरफ क्यों भागते थे? वो तो ठीक ही कि गवर्नमेंट जॉब है कि पक्की सैलरी लग जाएगी, उसके साथ साथ ये था कि मुझे पेंशन लग जाएगी, ठीक है ना। जो कि आज के टाइम में ये चीजें नहीं है, पेंशन वगैरह ये सारी चीजें बिल्कुल भी नहीं है ना, ये चीज है। सो मैंने फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स को 2015 के अंदर देखा, अगस्त मंथ के अंदर, ठीक है। इससे पहले मैंने जॉब करी, ठीक है ना। हमें 8 घंटे के अंदर 90 ट्रैक्टर बनाने होते थे, ठीक है ना, ये चीज है। अब अच्छा एक चीज समझना अच्छे से, हमें एक दिन में 90 ट्रैक्टर बनाने होते थे। मेरी 6 से 2 जॉब होती थी एक हफ्ता, फिर मेरी संडे छुट्टी होती थी, फिर आफ्टरनून के 2 रात के 10 बजे तक जॉब होती थी। ऐसे ही चलता था, है ना। 6 से 2, 2 से 10, हफ्ते हफ्ते बाद एक दिन में 90 ट्रैक्टर बनाने होते थे, 90 ट्रैक्टर बनते थे। अब जिसके पास डायरी पेन है, डायरी पेन पे कैलकुलेशन लगाना, अच्छे से समझना। एक ट्रैक्टर स्वराज का 5 लाख से ऊपर का है, 6, 7, 8 लाख, 9 लाख का है, 10 लाख से भी ऊपर ऊपर है। हम मोटा मोटा लगाते हैं, एवरेज लगाते हैं, सारी ट्रैक्टर का प्राइस 5 लाख, ठीक है ना जी। कि एक ट्रैक्टर का रेट है 5 लाख, 90 ट्रैक्टर बनाते थे हम एक दिन के अंदर, ठीक है ना, 90, ठीक है ना। सो अब 90 मल्टीप्लाई मोटा मोटा 5, है ना। तो 9 पंजे 45, 45 हो गया, मतलब 4.5 करोड़ रुपया हो गया एक दिन के अंदर। हम मैंने, मतलब मैंने अकेले ने नहीं, जितनी भी पूरी मैन पावर है, जितनी मेरा असेंबली डिपार्टमेंट था, हमने 4.5 करोड़ रुपए का, है ना, पूरा उनको टर्नओवर करके ट्रैक्टर बना के दिया एक दिन का। 10 दिन का कितना हो गया? 45 करोड़। 20 दिन का कितना हो गया? 90 करोड़। और महीने का कितना हो गया? 135 करोड़। 135 करोड़ का मतलब ट्रैक्टर बना के दिया, और इससे ज्यादा का बना के दिया, जबकि ट्रैक्टर, हर ट्रैक्टर 5 लाख का नहीं है, ठीक है ना, इससे ज्यादा रेट के भी हैं। 135 करोड़ के ट्रैक्टर वगैरह बना के दिए, और मेरे को जो सैलरी मिली 30 दिनों की, सॉरी 26 दिनों की, 4 छुट्टी होती थी संडे की, जो 26 दिनों की 26 दिन की मेरे को सैलरी मिली, वो पता कितनी मिली? 8,000, 8,000 की। मैं हार्ड वर्क कर रहा हूँ। अच्छे स्कूल में बच्चे किसके पढ़ रहे हैं? महिंद्रा के मालिक। अच्छी गाड़ी किसके पास है? महिंद्रा के मालिक के पास। अच्छा घर किसके पास है? महिंद्रा के मालिक के पास। घूमता फिरता कौन है? महिंद्रा का मालिक। अब चक्कर क्या है कि ये क्यों हो पाया? ये इसलिए हो पाया क्योंकि महिंद्रा के मालिक के पास नेटवर्क है। महिंद्रा के मालिक का एक दिन में बहुत घंटे काम हो रहा है, वो बंदा स्मार्ट वर्क कर रहा है, हार्ड वर्क मैं कर रहा हूँ, ठीक है ना। मैं वहां अपने लिए काम नहीं कर रहा, मैं उसके लिए काम कर रहा हूँ। उस बंदे ने मेरा टाइम खरीद लिया, और मेरा टाइम खरीद के, और बहुत सारे लोगों का टाइम खरीद के, वो बंदा पैसे पे पैसे छाप रहा है। सेम चीज आपने फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में समझनी है कि आज आप इस बिजनेस के अंदर आए हो, आपने अपना लेवल अप करना है। लेवल अप करने के बाद, है ना, वो आपके सीनियर्स आपको सारा समझा देंगे कैसे करना है। लेवल अप करने के बाद आपको यहाँ पे एक नेटवर्क बिल्ड करना है। आप इंडिया में कहीं से हो, इस दुनिया में आप कहीं से भी हो, एक चीज समझनी है, इस दुनिया में आप कहीं से भी हो, क्या आपके शहर में, आपके एरिया में, आपकी सोसाइटी के अंदर अपॉर्चुनिटी की लोड है, लोगों को काम की लोड है? अगर तो आंसर नो आ गया, फिर तो बिजनेस को मत करना। अगर आंसर यस आ गया तो कर लो, सिंपल है। और इस दुनिया में ऐसी कोई भी जगह नहीं है जहां पे लोगों को काम की जरूरत नहीं है। पहला आंसर यस आ गया कि काम की जरूरत है, यस। दूसरा, क्या आपके एरिया में, आपकी सोसाइटी में, आपके शहर के अंदर लोगों को पैसों की जरूरत है? आंसर है यस। काम की जरूरत है, पैसों की जरूरत है। क्या आपके आसपास लोग को कि आप लोग ये चीज सोचते हैं कि मेरी हेल्थ अच्छी रहे? बिल्कुल सोचते हैं भाई। 2020 के अंदर कोविड-19 आया, लॉकडाउन हुआ है, हर बंदा सोचता है कि मेरी हेल्थ अच्छी रहे। अब अगर इन तीनों चीजों के अंदर बंदे का आंसर यस है, ठीक है ना, तो भाई अपनी भी तो यस रखो ना फिर फॉर एवर लिविंग के अंदर, कि हाँ भाई मेरा आज एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन है, मैं इस बिजनेस को प्रॉपर पूरे दिल से, पूरे जी जान से लगा के मेहनत करने के लिए प्रॉपर रेडी हूँ, ठीक है ना, ये चीज है। सो जैसे मैंने उस टाइम अपना डिसीजन बनाया कि हाँ यार, मैंने फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स को अभी पूरा जी जान लगा के काम करना है, राइट। उसके बाद फिर मैंने टीम बिल्ड करनी स्टार्ट करी यहाँ पे, ठीक है ना, ये चीज है, ठीक है ना। सो बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, आपके साथ भी होएगा, मेरे साथ भी हुआ, हर एक बंदे के साथ हुआ, जिनको आप एक आज के टाइम में एक अच्छी अर्निंग लेते देख रहे हो। ये हर बंदे की जर्नी के अंदर ये चीज हुई है। क्या हुई है? लोग आपको बोलेंगे प्रोडक्ट महंगे हैं, लोग आपको बोलेंगे बंदे लगाने वाला काम है, लोग आपको बोलेंगे चैन सिस्टम है, लोग आपको बोलेंगे इन कामों में कुछ नहीं रखा। लोग आप मैं ना एक बार हरियाणा साइड गया,
हरियाणा साइड ना मेरे को एक बंदा मिला, ऑफलाइन में मीटिंग कर रहा, वहां पे ना उसने, वहां पे मेरे को एक बंदे ने बोला, कह रहा भाई ठीक है लेकिन यार एक चीज तेरे को बताऊं। मैं कहा भाई बता, क्या बताना है बताओ। उसने मुझे कहा, कह रहा भाई हमने भी घाट घाट का पानी पी रखा है, हमने भी घाट घाट का पानी पी रखा है। तो ना मैं जब मीटिंग करके वापिस आ रहा था, गाड़ी में थे हम मैनेजर्स के साथ अपने, तो ना मैं अपने मैनेजर को हंसने लग गया है ना वहां पे। मैं कह रहा आज वो मीटिंग में पर्सन ही मिला, बोला घाट घाट का पानी पी रखा है मैंने। कह रहा हाँ जी सर। मैं कहा मेरे को एक चीज बताओ, तुम्हारे घर के अंदर फिल्टर लग रखा है? कह रहा हाँ जी लग रखा है। मैं कहा तुम्हारे घर में नल है, टूटी वगैरह है? कह रहा जी हाँ। मैं कहा तुम अपने घर में बढ़िया पानी पीते हो, वो सबमर्सिबल लगा हुआ है ना, वो बटन दबाते हो पानी निकलता है? कह रहा हाँ जी। मैं कहा मेरे घर भी है? कह रहा हाँ। मैं कहा मुझे उस बंदे की समझ नहीं आई कि वो बंदा अपना घर बार छोड़ के घाट घाट का पानी पीने गया क्यों? उसके घर में अच्छा खासा पानी आ रहा है, तो अपना जब चुप करके अपने घर में पानी पी, तेरे को घाट घाट पे जाने की क्या लोड़ पड़ गई? तो ये एक मिथ है, एक डायलॉग बाजी है, इन बातों में छोड़ो। पैसा कुछ नहीं होता, घाट घाट का पानी पिया है, मेरी पूरी जिंदगी निकल गई, मैंने पूरी दुनिया देखी है। अच्छा ठीक है, अगर इस मीटिंग के अंदर कोई ऐसा पर्सन है जो बंदा बोल रहा है मैंने पूरी दुनिया देखी है, तो मेरे को एक चीज बताओ, आप मेरे गांव का नाम बताओ। मेरे गांव का नाम क्या है? चंडीगढ़ के पास मैं कौन से गांव में रहता हूँ? तो नहीं बता। मुझे भी आपका नहीं पता आप कहाँ के रहने वाले हो। तो ये बोलने वाली बातें हैं, हमने पूरी दुनिया देखी है, किसी ने नहीं दुनियादानियां देखी। ठीक है ना, ये चीज है, जिसने देखी है वेल एंड गुड है, बहुत बढ़िया, जो घुमा है अच्छी बात है। लेकिन आप उनके चक्करों की बातों में आके भाई ना अपना टाइम वेस्ट मत कर लेना। ये जो आपके पास टाइम है ना, ये आपका टाइम अच्छा फ्यूचर बनाने का है, अच्छा बैंक बैलेंस बनाने का है। ठीक है ना, एक चीज समझिएगा, 18+ हो हम सारे, हम सारों की फॉरएवर में ज्वाइनिंग होगी, हम सारे 18+ हैं। दो तरीकों के एसेट होते हैं, दो तरह के एसेट होते हैं, एक रिस्की एसेट होते हैं, एक सेफर एसेट होते हैं, है ना। मेरे को चीज बताओ, 18 साल के बाद क्या आपने अपनी लाइफ में सोचा कि मेरे को रिस्की एसेट बनाने हैं और मेरे को सेफर एसेट बनाने हैं? ना। हमें 18+ के बाद एक ही चीज हमारे दिमाग के अंदर है, लाइबिलिटी, कि हम किस तरीके से अपनी जिंदगी में लाइबिलिटी खड़ी कर सकते हैं, हम किस तरीके से अपने घर वालों के लिए लाइबिलिटी खड़ी कर सकते हैं। ठीक है ना भाई, लाइबिलिटी भी कर लेना, लेकिन पहले अपनी अच्छी अर्निंग तो कर लो, पहले अपने एसेट तो बना लो। ठीक है ना, जब आपके एसेट बन जाएंगे, जितनी मर्जी लाइबिलिटियां, आज के टाइम में जो बंदा लैम्बोर्गिनी लेके घूमता है, रोल्स रॉयस लेके घूमता है, BMW, मर्सिडीज, ऑडी, रेंज रोवर, डिफेंडर, जो भी है, उनके पास पहले बहुत अच्छे एसेट हैं। जब उनके पास बहुत अच्छे एसेट हैं तो वो अपनी लाइफ में एंजॉय कर रही है। ठीक है ना। अब आप बोलोगे अच्छा ठीक है जी, एसेट है, हम कैसे बना सकते हैं? हम ऐसे बना सकते हैं, आपने एक बुक अगर पढ़ी नहीं है तो पढ़ लो, रिच डैड पुअर डैड, है ना, बिजनेस स्कूल बुक है, रॉबर्ट कियोसाकी की बुक है। उसमें अच्छे से एक ग्राफ है, एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉय, बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर। आज आपको फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स बिजनेस ओनर बनने का मौका दे रही है। आज हम इस बिजनेस के अंदर बिजनेस ओनर बने, यहां से अच्छा पैसा कमाया, सेव करा, एंजॉय भी करा, सेव करा, अपनी मदर की अच्छी सेविंग करी, फादर की अच्छी सेविंग करी, खुद की अच्छी सेविंग करी, जो पैसा आपने सेव करा उसकी आगे इन्वेस्टमेंट वगैरह कर लो, किसी चीज में कर लो, प्रॉपर्टी में कर लो। हमारी टीम घर में कितने सारे लोगों ने अपना इन्वेस्टमेंट वगैरह करी है। अब आप बोलोगे वो कैसे होगा? वो ऐसे होगा कि भाई आज आप जिस लेवल पे भी हो, वहां पे पहले आपका ये मैटर करेगा कि कल से आप फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में कितना जी जान लगा के मेहनत करते हो, आपका माइंडसेट क्या है इस बिजनेस को लेके, आप कितना बड़ा विजन लेके आए हो इस बिजनेस में। क्योंकि फॉरएवर तो पैसों का समंदर है, यहां से जितना मर्जी अर्न कर लो, फॉरएवर ने आपको कभी मना नहीं करना। फॉरएवर ने आपको ये नहीं बोलना नहीं भाई तेरी इनकम 1 करोड़ हो गई, नहीं अब नहीं होगी। भाई जितना मर्जी कमा लो, हजारों कमा लो, लाखों कमा लो, करोड़ों कमा लो। रोल किप्सर है, जैनलिच हैं हमारे, है ना, मिक्लोस है, टॉप के जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं हमारे, टीम फर्म में कितने सारे लीडर्स हैं जो करोड़ों रुपया कमा चुके हैं, जिन्होंने जिनको आपने ऑलरेडी सुना होगा, बहुत सारी आपने लग्जरी गाड़ियां देखी होंगी। ठीक है ना, लेकिन अब उनकी लाइफ ऐसी क्यों बनी? अब आपके माइंड में एक चीज हो रहेगी, यार उनकी लाइफ बड़ी अच्छी है, हमारी अच्छी क्यों नहीं है? अरे भाई आपकी भी अच्छी होएगी। फर्क पता क्या है? जैसे मान लो मैं अपनी बात बताता हूँ, फर्क पता क्या है? मुझे ये बिजनेस ना आपसे पहले मिल गया, बस आपको आज मिल गया यार। ठीक है ना, आप आज कर लो, आने वाले 2 साल के अंदर देखो आपकी लाइफ कहाँ पहुंचेगी। ठीक है ना, ये चीज है। मुझे पता है स्टार्टिंग में हर बंदा इस बिजनेस में इतना ही सोच के आता है 25, 30, 40, 50 हजार रुपया आ रहे, लेकिन जैसे जैसे हम इस बिजनेस में ट्रेनिंग लगाते जाते हैं, जैसे जैसे इस बिजनेस में पुराने होते जाते हैं ना,
वहां से चीज क्लियर होती है कि नहीं भाई, इस बिजनेस में 40, 50, 60, 70 हजार नहीं, इस बिजनेस में तो बहुत है, बस मुझे अपना पोटेंशियल, मूरे को पूरा जी जान लगा के, दम खम लगा के यहाँ पे मेहनत करनी। सो मैंने भी अपनी टीम बनानी स्टार्ट करी। मेरा शहर है डेरा बसी, चंडीगढ़ के पास। वहां से मैंने अपना नेटवर्क बिल्ड करना स्टार्ट करा। मेरे को बहुत सारे मेरे फ्रेंडों ने मना करा, नेगेटिव करा, इन कामों में कुछ नहीं रखा, क्या रखा है, ये है, ऐसे है, वैसे है। फैमिली की तरफ से नेगेटिविटी मिली, गांव की तरफ से बहुत सारे लोगों ने नेगेटिव करा, जहां जॉब कर रहा था वहां पे भी लोगों ने नेगेटिव करा। पर एक चीज तो क्लियर थी कि देखो यार, मेरा घर है, मेरे को ही मेरे घर के हालात सही करने पड़ेंगे, कोई और आके नहीं करेगा। मेरे घर के हालात कोई और आके सही नहीं करेगा, मुझे ही करने पड़ेंगे। देखो एक चीज समझो, आप जितने लोग मेरे को भी सुन रहे हो, मान लो हम सारे एक ही स्कूल में पढ़ते, हम सारे एक ही कॉलेज के अंदर हम पढ़ते, हम सारे यार दोस्त थे, फ्रेंड सर्कल, प्रैक्टिकल सी बात करेंगे, ठीक है ना, प्रैक्टिकल सी बात। एक चीज बताओ, हम सारे यार दोस्त होते, फ्रेंड होते, आप मेरी एक बार सपोर्ट कर देते, 2 बार कर देते, 5 बार कर देते, 50 बार कर देते, 500 बार कर देते भाई, पर क्या आप लोग मेरे घर के हालात सही कर देते? उसका आंसर है नहीं। मैं आपके घर के हालात सही कर देता हूँ? उसका नहीं। हमारे घर के अगर हमें हालात सही करने हैं तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी जिम्मेवारी किसको उठानी पड़ेगी? आपको कहीं जाने की लोड़ नहीं है, अपने आप को शीशे में जाके देख लेना, जो सामने बीच में बंदा दिख गया, उस बंदे को उसकी जिम्मेवारी उठाने की, उस बंदे को रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ेगी। अब अगर आज आप बोल रहे हो कि ठीक है डन है जी, मेरे पापा के पास लोन है, मैं अपने पापा के साथ मिलके हेल्प करवाऊंगा, हेल्प करवाऊंगी, मैं अपने घर वार की जिम्मेवारी उठाता हूँ, मैं अपने घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाता हूँ कि मेरे को अपने घर के हालात सही करने हैं, करना क्या पड़ेगा? उसके लिए करना क्या होगा? उसके लिए जो मैंने अभी थोड़ा टाइम पहले आपको बताया, स्ट्रॉन्ग डिसीजन, उसके बाद फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट के अंदर लॉन्ग टर्म विजन। अब लॉन्ग टर्म विजन आपका कैसे बनेगा? एक होता है मोटिवेशन से, एक होता है एजुकेशन से। मोटिवेशन से, है ना, ठीक है, मोटिवेशन भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, एजुकेशन भी इंपॉर्टेंट है, दोनों चीजें हैं। एक चीज आप अपने आप को क्वेश्चन करो कि क्या नेटवर्क मार्केटिंग को इंडियन गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है? नेटवर्क मार्केटिंग को इंडियन गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है? आंसर यस या नो? यस, कर रही है। क्या इंडियन गवर्नमेंट डायरेक्ट सेलिंग को सपोर्ट कर रही है? क्या इंडिया के अंदर डायरेक्ट सेलिंग आने वाले 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, 25, 30 साल के अंदर फ्यूचर है? उसका आंसर है यस। क्या इंडिया के अंदर वेलनेस इंडस्ट्री की जो ग्रोथ है, न्यूट्रिशन है, वेट मैनेजमेंट है, पर्सनल केयर है, स्किन केयर है, ये जो सेगमेंट है, ये जो इंडस्ट्रीज है, मतलब स्किन केयर की अलग है, पर्सनल केयर की अलग है, न्यूट्रिशन की अलग है, ये जितनी इंडस्ट्रीज हैं, क्या इनकी टर्नओवर बढ़ रही है? क्या इनकी ग्रोथ बढ़ रही है? क्या इनका प्रॉफिट बढ़ रहा है? उनका आंसर है यस। तो आप एक चीज समझो, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के अंदर हम आए, हम किस बिजनेस में है? नेटवर्क मार्केटिंग। तो गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, यस, तो आप बिल्कुल राइट प्लेटफॉर्म के ऊपर आए, ठीक है ना। दूसरा मैंने क्या बोला आपको? डायरेक्ट सेलिंग। हम आज किस कॉन्सेप्ट के अंदर है? हम डायरेक्ट सेलिंग के अंदर है। तो गवर्नमेंट जिसको चीज को सपोर्ट कर रही है, हम उसी बिजनेस के अंदर है। तीसरी चीज वेलनेस है। अगर आपको वेलनेस के ऊपर ना, मतलब अभी भी क्लियरिटी नहीं होती, ज्यादा दूर जाने की लोड़ नहीं है। आपका जहां घर है ना, आपका जहां घर है, आपके घर के लेफ्ट साइड में 10 घर होंगे, राइट साइड में 10 घर होंगे। उन 10 घरों के ना डायरी पे नाम लिख लो। उन 10 घरों के अंदर ये देख लो कि क्या उस घर के अंदर कुछ, मतलब कोई लोग हैं जो थोड़ा बहुत हेल्थ चैलेंज है, जो बीमार है? आपका आंसर आएगा यस है, ठीक है ना। तो अगर बीमार है तो सिंपल सी बात यह है कि आज के टाइम में जो लोग हेल्दी हैं, क्या वो आने वाले टाइम में बीमार नहीं पड़ेंगे? पड़ेंगे। आज जब मार्केट में जाओ, आपको दुकानें, 2 रेडियां मिलेंगी, एक जूस वाली, एक फास्ट फूड वाली। सबसे ज्यादा भीड़ कहाँ है? फास्ट फूड पे ज्यादा भीड़ है, जूस वगैरह की तरफ तो कोई भागता ही नहीं, ठीक है ना। तो जो वो फास्ट फूड खा रहे हैं तो बीमारियां ही होनी है। मैं ना एक बड़ी अच्छी वीडियो देख रहा था, आप भी हंसोगे इस चीज के ऊपर, है ना। कहते आज के टाइम में लोगों की हेल्थ खराब पता क्यों हो रही है? कह रहे लोग मार्केट में जाते हैं, समोसे खाते हैं, कचौरियां खाते हैं, चाउमीन खाते हैं, मोमोस खाते हैं, ये सारा वगैरह खाते हैं, बंदे की हेल्थ डाउन हो जाती है। जब बंदे को हेल्थ चैलेंज आता है तो बंदे को हॉस्पिटल के अंदर रेफर कर दिया जाता है। हॉस्पिटल के अंदर जैसे उसको रेफर किया जाता है, फिर वहां पे चीज क्या होती है कि उसके रिश्तेदार, उसके यार दोस्त, उसके मित्र, सोसाइटी, फैमिली उसको मिलने आती है, उसकी हाल चाल उसका पूछने आती है कि भाई कैसा है ना। जब उसका हाल चाल पूछने आती है तो उसके लिए फ्रूट वगैरह लेके जाते हैं, है ना। बनाना लेके जाएंगे, एप्पल लेके जाएंगे, है ना, ये चीज है, ऑरेंज वगैरह लेके जाएंगे, ग्रेप, अंगूर वगैरह मतलब फ्रूट्स वगैरह लेके जाएंगे कि बंदा हेल्दी हो जाए, है ना, जो बंदे की हेल्थ खराब हुई है। कह रहे आप हॉस्पिटल के अंदर ना जो बंदे फ्रूट लेके गए,
उसके बाद जो उन्होंने हाल चाल पूछ लिया, फिर वो हॉस्पिटल से बाहर आए। अब वो हॉस्पिटल के बाहर पता क्या कर रहे हैं? कचौरी खा रहे हैं, समोसे खा रहे हैं, चाउमीन खा रहे हैं, मोमोज खा रहे हैं। कहते थोड़े टाइम के बाद फिर वो हॉस्पिटल में आ जाएंगे, अब उनके फिर रिलेटिव आएंगे, वो फ्रूट लेके आएंगे, फिर वो बाहर कचौरी खाएंगे। तो ये चीज चल रही है और ये चीज होनी कभी बंद नहीं हो सकती। तो इसीलिए ये चीज है कि अगर बंदे को अपनी हेल्थ सही करनी है तो उसको अपनी बॉडी को अच्छी डाइट देनी पड़ेगी। अब अच्छी डाइट के अंदर एक चीज है कि क्या फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के जो प्रोडक्ट हैं क्या दमदार है, रिजल्ट है ना। अब कई बंदों का एक ही क्वेश्चन होता है, यार ये प्रोडक्ट साइड इफेक्ट तो नहीं करेंगे? अरे यार भाई मेरी बात सुन, देश के 5 देशों के नाम बताओ, सॉरी पूरे वर्ल्ड के 5 देशों के नाम बताओ। जापान, अमेरिका, यूके, स्विट्जरलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया। 5 देश हो गए। इन 5 देशों के अंदर फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। एक बंदे ने मेरे को बोला, कह रहा है कंपनियां तो ना बेवकूफ बनाती हैं। मैंने उसको बोला, मैं कहा भाई देख मेरी सुन बात, मैं मानता हूं कि इस दुनिया में एक बंदे का बेवकूफ बनाया जा सकता है, पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। 10 का भी बनाया जा सकता है, 100 का भी बनाया जाता है, भाई 1000 का भी बनाया जा सकता है, 10,000 का भी बनाया जा सकता है, 1 लाख का भी बनाया जा सकता है, 10 लाख बंदों का बेवकूफ बनाया जा सकता है, 1 करोड़ बंदों का भी बेवकूफ बनाया जा सकता है। मैं कहा चलो यार तेरे दिल की बात करते हैं, 10 करोड़ बंदों का भी बेवकूफ बनाया जा सकता है, पर 160 देशों का बेवकूफ कौन बना देगा? 160 देश, मतलब इसका मतलब तो भाई हम वो 160 देशों की जो गवर्नमेंट है उसको पागल मानते हैं। 160 देशों की जो गवर्नमेंट है वो पागल है, उनको पता नहीं कुछ। जापान की गवर्नमेंट ऐसी ही है, यूएसए की गवर्नमेंट ऐसी ही, यूके की गवर्नमेंट ऐसी ही है। अरे भाई फॉरएवर वहां सालों सालों से काम कर रही है। इंडिया के अंदर फॉरएवर 2000 में आई थी, हमें 24 साल काम करते हो गए। आज ही मेरे को एक पर्सन मिला ऑफलाइन मीटिंग के अंदर, उसने मेरे को बोला ये कंपनी है वो काफी मेरे को बोला। मैंने उसको बोला, मैं कहा एक चीज बता भाई, फॉरएवर इंडिया में 2000 में आई, हमें 20 साल से ज्यादा काम करते हो गए इंडिया के अंदर। मैं कहा एक चीज बता, 20 साल के अंदर इंडियन गवर्नमेंट को पता ही नहीं चला कि 20 साल से कोई फ्रॉड चल रहा है? फिर मैंने उसको अपना जीएसटी नंबर दिखाया, मैंने उसको अपनी आईटीआर दिखाई, मैंने आपको उसको अपनी इस महीने की इनकम दिखाई, मैंने उसको अपनी नेट बैंकिंग भी दिखा दी। मैं ये देख नेट बैंकिंग मेरी स्टेटमेंट रही, इस महीने की मेरी इतनी इनकम आई। फिर बंदा बोला, अगर हाँ जी अब तो मैं मानता हूँ काम ठीक है। मैं कहा हम भी तो तेरे को भाई काफी टाइम से बोल रहे हैं कि काम ठीक है, काम ठीक है, काम ठीक है, ठीक है ना, ये चीज है। सो पहले भाई एक डिसीजन बनाओ, ठीक है ना। आप स्टडी कर रहे हो, वेल एंड गुड है, जॉब कर रहे हो बहुत अच्छा, बिजनेस कर रहे हो बहुत अच्छा, नहीं भी कुछ कर रहे फिर तो बहुत अच्छा, फिर तो फॉरएवर फुल टाइम करो अगर नहीं कुछ कर रहे हो, ठीक है ना। आज हमारी टीम फेयर में कितनी सारी है ना लेडी हैं जो हाउस वाइफ है, हाउस वाइफ होके आज कितनी वो लाखों रुपया अर्न कर रही है। पुराने टाइम में एक बड़ा चैलेंज था कि जी हाउस वाइफ नहीं मैनेजर बनती, उनके पास घर का काम होता। टीम घर में कितनी सारी हाउस वाइफ है जो बहुत अच्छी अर्निंग कर रही है, ठीक है ना। ये चीज है, चैलेंज आएंगे, लोग नेगेटिव करने वाले भी मिलेंगे, रिश्तेदार होंगे, दोस्त होंगे, आपकी फैमिली से होंगे, लेकिन आपने डटे रहना, आपने अपना हौसला बना के रखना है। आपका एटीट्यूड नेवर गिव अप वाला होना चाहिए कि नहीं भाई ठीक है ना, मेरे को इस बिजनेस को करना है, मेरा इस बिजनेस के अंदर फ्यूचर है, मेरा इस बिजनेस में करियर है। और आपको मैं सच्ची बता रहा हूँ भाई, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट के अंदर मेहनत करके जो यहाँ पे जिंदगी बनती है ना, कहीं नहीं बनती। अगले साल पता हमारी ग्लोबल रैली कहाँ जा रही है? फ्रांस जा रही है, पेरिस जा रही है। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ फ्रांस जाने के लिए। अल्फिल टावर पे जाके भी फोटो डालेंगे। जिंदगी में एक चीज समझो, आपको रील वाला स्टार बनना है या रियल लाइफ वाला स्टार बनना है ना। रियल वाला ना बनो, आज के टाइम में दुनिया बनती जा रही है, रियल वाला बनो। कैसे बनोगे आप रियल वाला? आप पता क्या, आज के टाइम में एक चीज हो रहा है, बहुत सारे ना स्टूडेंट्स को ये चीज है कि यार मैंने इतने अच्छे मार्क्स लिए, मैंने टॉप किया, मैं स्टडी में इतनी अच्छी थी, मैं स्टडी में इतना अच्छा था, लेकिन मेरे पेरेंट्स ने मुझे कभी ये क्यों नहीं कहा कि बेटी मुझे तेरे ऊपर प्राउड है, कि बेटा मुझे तेरे ऊपर प्राउड है। आप ये कहलवाना चाहते हो जी अपनी फैमिली से कि मुझे तेरे ऊपर प्राउड है? सिंपल सा फंडा बताऊं, अपने घर वालों को पैसे देने स्टार्ट करो, अपने घर वालों के हाथ में पैसे रखने स्टार्ट करो। अरे 5,000 रखो, 6 रखो, 7 रखो, 10 रखो, जितने भी रखने रखो, पर रखो। एक बार उनको पैसे देने स्टार्ट करो, उनके हाथ में पैसे रखने स्टार्ट करो, ठीक है ना। जैसे ही मैं हर महीने अपनी फैमिली को पैसे देता हूँ, मैं अपनी मदर को भी देता हूँ, फादर को भी देता हूँ। अब वो मैं यहाँ नहीं बता सकता मैं कितने देता हूँ, लेकिन बहुत अच्छे देता हूँ, बहुत बढ़िया देता हूँ, ठीक है ना। ये चीज है मेन बात, ठीक है ना। तो ये चीज है वो, ठीक है ना। बता भी देता हूँ थोड़ा सा, चलो अगर इतनी बात है ना, थोड़ी मोटिवेशन मिलेगी आपको उस चीज से।
मैं हर महीने अपनी मदर को 50,000 मैंने देने ही देने हैं। मेरी मदर हाउस वाइफ। मैं अब ये नहीं कह रहा कि हाँ ये, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि देखो 8,000 जॉब कमाने वाला बंदा अगर यहाँ पहुंच सकता है तो आप भी पहुंच सकते हो। लाख रुपया डैडी को देना ही देना है, उनके अकाउंट में ट्रांसफर करना ही करना है, पक्के का पक्का। एक बंदे ने ना मेरे को लॉकडाउन से पहले क्वेश्चन कर रहा था, कह रहे एक चीज बताओ, आप फादर को ज्यादा पैसे देते हो मम्मी को कम देते हो, ऐसा क्यों? तो मैंने उसको एक आंसर बोला, मैं कहा मेरी पढ़ाई पे पैसा किसी ने लगाया था, मेरे फादर साहब ने, तो उनको ज्यादा देने बनते। अरे मम्मी को तो डैडी को तो सेम ही है, अपने ही है वो सारे, घर में कोई मतलब वो थोड़ी जाएंगे वहां से वो, लेकिन उनको कितना अच्छा लगेगा। अब एक चीज सोचो, मैं गवर्नमेंट जॉब लग जाता, मैं गवर्नमेंट जॉब को गलत नहीं बोल रहा, मैं वैसे आपको बता रहा हूँ कि क्या ये चीज पॉसिबल होनी थी। अब मैंने 1.5 लाख तो उनको दिया है, उसके बाद मेरा अपना खर्चा भी है, ठीक है ना, ये चीज है, अपनी लाइफ भी जीनी है, ठीक है ना, ये चीज है। तो मेन चीज ये है, ये क्यों पॉसिबल है? ये पॉसिबल है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट की बदौलत, ये पॉसिबल है टीम फेयर के एजुकेशन सिस्टम से, ठीक है ना, ये चीज है। जो एजुकेशन सबके लिए सिर्फ है, मेरे लिए भी आपके लिए, मेरे लिए भी 9 साल पहले वही एजुकेशन सिस्टम था, आपके लिए भी 9 आज यही एजुकेशन सिस्टम है। फॉलो करना है सिस्टम को, तो फॉलो कर ही सकते हो। सिंपल सी बात है, नकल मारनी आती है? नकल मारनी आती है? थोड़ी बहुत ही तो मारी होगी स्कूल कॉलेज में, मैंने तो करी है थोड़ी बहुत ही, हर मैं आपको क्यों झूठ बोलूं। कॉपी पेस्ट का बिजनेस है यार, सीखना है सिखाना है, सीखना है सिखाना है, सीखना सिखाना है। मैं ये नहीं बोलूंगा, देखो अगर इसको बिना सीखे करोगे, इसको क्या, दुनिया के किसी काम को बिना सीखे करोगे बहुत मुश्किल है, सीख के करोगे बहुत आसान है, बहुत ज्यादा आसान है, ठीक है ना। अब आप लोग हम सीखेंगे कैसे भाई? ट्रेनिंग्स हो तो रही है, डेली तो ट्रेनिंग्स होती हैं, ऑनलाइन ट्रेनिंग्स हो रही है, ऑफलाइन भी आपके पास होती होती है, अपनी ऑफलाइन से कांटेक्ट करके पूछ लो कि कहाँ पे ट्रेनिंग्स होती हैं। मेन है कि भाई आपका डिसीजन क्या है, मेन ये है कि कल से आप फॉरएवर को कितना टाइम देते हो, ठीक है ना, ये चीज है। हजारों वाला, हजारों की इनकम सोच के आज लाखों में एक अंदर इनकम है, ठीक है ना, ये चीज है। बस वो क्यों है? क्योंकि भाई मेहनत करी, रेगुलर एफर्ट्स करे, ठीक है ना। दो स्किल्स अपने अंदर ना आज की आज बिल्ड कर लो, एक तो रेगुलर मेहनत करने की, और दूसरा सब्र की, पेशेंस की, सब्र रखने की। दो स्किल्स आज के आज अपने अंदर बिल्ड कर लो। अगर आप रेगुलर काम करोगे, आपके अंदर सब्र नहीं है, पेशेंस नहीं है, वहां भी प्रॉब्लम है। अगर आपके अंदर ओवर पेशेंस है, सब्र बहुत है, लेकिन रेगुलर एफर्ट्स नहीं करते, वहां भी प्रॉब्लम है। दोनों चीजों का बैलेंस बना के काम करना है आपको उस बिजनेस के अंदर, सब्र भी रखना है, पेशेंस भी रखनी है, और साथ के साथ आपको रेगुलर एफर्ट्स भी करते जाना है। आप लोग रेगुलर एफर्ट्स क्या? रेगुलर एफर्ट्स वो जो आपके सीनियर्स आपको एक रोड मैप देंगे कि भाई ये रास्ता है, ठीक है ना, ये रास्ता है, इस रास्ते, क्योंकि जो आपके सीनियर है ना, जो आपकी मैनेजर अपलाइन है, वो इस बिजनेस के अंदर सारे कच्चे रास्ते चल चुके हैं। उनको सब पता है कि पहला गियर गाड़ी का कहाँ डलेगा, दूसरा कहाँ डलेगा, तीसरा कहाँ डलेगा, चौथा कहाँ डलेगा, पांचवा कहाँ डलेगा, कहाँ खड्डा आएगा, कहाँ गाड़ी के हैंड ब्रेक उठाने हैं, कहाँ गाड़ी ऑटोमेटिक मोड में लेके जाने हैं, कहाँ गाड़ी का स्पोर्ट्स गियर डालना है, कहाँ गाड़ी का स्पोर्ट्स प्लस गियर डालना है। उनको सब पता है, उन्होंने सारे कच्चे रास्ते चल लिए हैं, ठीक है ना। वो आपको वो गलती करने नहीं देंगे जो उन्होंने ऑलरेडी गलतियां करी हैं। अब सिंपल सी बात ये है कि आज मान लो है ना, मेरी टीम में जो पर्सन है, मैं उनको कभी वो गलती करने दूंगा जो मैंने खुद करी है? बिल्कुल भी नहीं। वो गलती करके, है ना, मतलब मैंने चलो जितना अचीव किया ठीक है, वेल एंड गुड है, अगर मैं वो गलती ना करता शायद उससे भी ज्यादा अचीव करता। तो सिंपल सी बात यह है कि आपके सीनियर्स वो आपको गलती करने नहीं देंगे, ठीक है ना, ये चीज है। जैसे मेरे जो सीनियर्स हैं, उन्होंने, है ना, उन्होंने मुझे वो गलती करने नहीं दी कि भाई वरिंदर तूने ये गलती नहीं करनी, ठीक है ना, ये चीज है, हमने ये गलती करी थी, तेरे को ये गलती नहीं करनी, तो मैंने नहीं करी। अपना दिमाग क्यों लगाना है यार? अपना दिमाग क्यों लगाना है? ऊपर से प्रॉपर एक सेटअप बना हुआ है, फॉलो करते जाओ, फॉलो करते जाओ, ठीक है ना। सो उसके बाद फाइनली फिर मेरा 25 सीसी से सुपरवाइजर हुआ, फिर 75 सीसी से असिस्टेंट मैनेजर हुआ। मैं 7 मंथ में यहाँ पे असिस्टेंट मैनेजर बन गया था। फाइनली 8 मंथ में मेरा मैनेजर लेवल हो गया था, ठीक है ना। सो 9th मंथ में बहुत अच्छी इनकम हो गई थी, मतलब इनकम लाखों में पहुंच गई थी, ठीक है ना, ये चीज है, बहुत अच्छी इनकम हो गई थी, ठीक है ना। सो उसके बाद फिर मैनेजर के बाद सीनियर मैनेजर हुआ, कार प्लान हुआ, फिर कार प्लान हुआ, फिर सोरिंग मैनेजर हुआ, फिर चेयरमैन बोनस हुआ, ठीक है ना, फिर ग्लोबल रैलीज हुई, है ना, बहुत बढ़िया, मलेंद्र क्लब बीच में हुआ, ठीक है ना। मैं आपको बताऊं कि भाई, है ना, भी मैं कई बार ये सोचता हूँ कि यार हमने तो इतना सोचा भी नहीं था कि जितना फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स ने दे दिया, ठीक है ना। बस शुक्र है, शुक्राना है भगवान का कि हाँ भाई, अगर मेरे दिमाग में फॉरएवर ना गिरती, अगर मुझे फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स अंडरस्टैंड ना होती, अगर मेरे को फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट की क्लैरिटी ना होती,
तो इतनी बात तो क्लियर थी कि मैंने नहीं यार यहाँ तक पहुंचना था। मैं थोड़ा आपको स्क्रीन शेयर करके दिखा भी देता हूँ, ठीक है ना। ये चीज है, आपको वहां से और थोड़ी सी क्लियरिटी मिलेगी, ठीक है ना। ये चीज है, ये इस तरीके से चेक करो, है ना। ये बाइक पे मैं ही बैठा हूँ जो ग्रीन से कलर की जैकेट डाल रखी है। पीछे की जो छोटा सा बच्चा खड़ा है ना, वो पीछे एक बाइक खड़ी है, अगर आपको दिख रही होगी, रेड कलर की सीडी डॉन है। 12,500 की मैंने वो सेकंड हैंड बाइक ली थी, ठीक है ना। उसी बाइक पे मैं मैनेजर बन गया। क्यों झूठ बोलना है आप लोगों को, है ना। मतलब क्यों फुगरियां मारनी बिना बात के। मेरे पास तो 3-4 पैंटें होती थी, 4-5 कमीजें, टी शर्ट, मतलब टी शर्ट शर्ट लगा लो, वो ही 4-5 कपड़ों में मैनेजर बन गए। बस ये था कि काम करना है, मेहनत करनी है, घर की जो गरीबी है ना, कि जो मिडिल क्लास एक टैग लगा है, इसको हटाना है, ठीक है ना। ये चीज है, क्योंकि जब अपने सीनियर्स की इनकम देखते थे, गाड़ियां देखते थे, अचीवमेंट्स देखते थे, एक चीज होती थी यार, हमारे सीनियर्स कर सकते हैं, उसका 50% तो यार मैं भी कर ही लूंगा, मेहनती तो हम भी हैं, ठीक है ना। ये चीज है। तो ऐसे, ये मेरे गांव की फोटो है, जो मेरा गांव है, वहां पे मैं ऐसे प्लानिंग करते थे। ये मेरे शहर की सबसे पहली मीटिंग है, ऑफलाइन मीटिंग, सबसे पहली मीटिंग। मतलब मेरे शहर के अंदर जब मतलब हमने बिजनेस करना, मतलब आज तो ऑनलाइन काम है, लेकिन ये 2015 की बातें हैं, ठीक है ना। तो ये ऑफलाइन मीटिंग्स हैं। इस तरीके से फिर हमारी होटल डेरा बसी में मीटिंग्स होनी स्टार्ट हुई। आप जैसे इस ट्रेनिंग के अंदर बहुत सारे लोग आए होंगे, चले गए, है ना, अरे छोड़ के चले गए कि छोड़ो यार, है ना। तो हमारी भी ऑफलाइन मीटिंग में मैंने भी ये चीजें करी हैं। ऑफलाइन मीटिंग होती थी, मैं नहीं लगाता था। ये बाइक पे मैं बैठा हूँ, जो येलो से कलर का स्प्लेंडर है, उधर बुलेट है, वो मेरे फ्रेंड है रमजान। हम एक ही गांव से हैं, वो मेरे डायरेक्ट के अंदर मैनेजर है। हम एक ही स्कूल में पढ़े हैं इकट्ठे। तो उस टाइम क्या था, देखो एक चीज समझने वाली है, ऑफलाइन अपनी ऑनलाइन को ट्रेनिंग लगाने के लिए बोलती है कि ट्रेनिंग लगा, है ना। अब हम यार दोस्त थे, पढ़े इकट्ठे थे। मुझे याद है महाली ऑफिस में हमारी ट्रेनिंग थी, तो मैंने रमजान को बोला, मैं कहा यार कल लगाई तो थी ट्रेनिंग यार, तू आ जा बाहर बैठेंगे। अब आप बोलोगे ये फोटो कहाँ से आई, ये फोटो पता कैसी आई। हम नीचे बैठे तो ऊपर से मेरे सीनियर थे, ठीक है ना, उन्होंने फोटो खींची, मेरे को व्हाट्सएप पे शेयर कर दी। उन्होंने मेरे को बोला, कह रहा वरिंदर व्हाट्सएप खोल। मैंने व्हाट्सएप खोला, तो उन्होंने बोला ये क्या कर रहा है, तू ट्रेनिंग क्यों नहीं लगा रहा। फिर मेरे को एक चीज एहसास हुई कि वरिंदर तू धोखा किसको दे रहा है, तू अपने आप को धोखा दे रहा है। नहीं ट्रेनिंग लगाएगा, नहीं सीखेगा, पीछे रह जाएगा भाई। फिर पहले मैं अपनी डाउनलाइन को बाहर लेके गया, लेकिन उसके बाद फिर मैं सारी डाउनलाइनों को बोलता, अपनी टीम को बोलता, ट्रेन लगाओ, ट्रेन लगाओ, ट्रेन लगाओ, ट्रेन लगाओ। और तब से आज तक यही है कि ट्रेन लगाओ, सीखो भाई, जितना सीख सकते हो। और सीखने के अंदर भी ये चीज है कि पहले सीखो, है ना। जब कोई ट्रेनिंग लगानी है ना, बिना डायरी पेन के कभी ट्रेनिंग मत लगाओ। और उस डायरी के ऊपर नोट्स बनाओ, और जो आप नोट्स बना रहे हो उसके ऊपर इम्प्लीमेंट लो, उसके ऊपर एक्शन लो, ठीक है ना। ऐसे हम ना चंडीगढ़ में जाते थे, JW मेरिट पड़ता है एक चंडीगढ़ में, आपने सुना होगा। इसकी ना फोटो ली थी मैंने उस टाइम। हम ना बोलते थे, मैं कहा यार हम कभी JW मेरिट में जाएंगे यार, है ना, हम कभी जाएंगे। लेकिन आज तो चंडीगढ़ का कोई ऐसा होटल नहीं है, कोई ऐसी जगह नहीं है जहां ना गए हो, है ना। क्योंकि फॉरएवर ने उतनी इनकम कर दी ना। एक चीज होता है कि चलो यार आज वहां पार्टी कर लेते हैं, फिर वहां कर लेंगे अगली पार्टी, वहां कर लेंगे अगली पार्टी, वहां कर लेंगे, है ना। ये चीज है, मतलब एक टाइम ना डर लगता था कि यार JW में जाएंगे यार, कैसा होगा यार अंदर से होटल, है ना। ये है, बहुत चीजें महंगी होंगी यार, है ना। ये चीजें, कॉफी बड़ी महंगी होगी, ऐसे माइंड में बहुत सारी चीजें चलती थी। लेकिन ये चीज था, जब पैसे आए, है ना, अच्छी इनकम हुई, फिर हुआ कि नहीं यार अब सारे शौक पूरे करने हैं, जो जो चीज सोचते थे। ऐसी ऑफलाइन मीटिंग्स वगैरह करते थे जी, ठीक है ना, वो टाइमों के अंदर, ठीक है ना। ऐसे बहुत हार्ड वर्क करा, ठीक है ना। फिर और नेटवर्क बड़ा हुआ हमारा, ठीक है ना, ये चीज है। इस तरीके से मीटिंग करते करते फाइनली मेरा सुपरवाइजर हो गया, ठीक है। ये मैं बीच में ही बैठा हूँ, है ना। जिन्होंने पिंक कलर की टर्बन पहन रखी है, मोरे मेरे सीनियर है नगिंदर सर, ठीक है ना, जिन्होंने मेरे को बिजनेस के बारे में बताया। सो ये हमारा सक्सेस डे होता था पंचकुला में कंपनी का, जैसे दिल्ली में सक्सेस होते हैं, ये वहां पे मेरे को रिकॉग्नाइजेशन मिली सुपरवाइजर की, ठीक है ना। बीच में हमारे सीनियर खड़े हैं जसप्रीत सर, उनको वो सीनियर मैनेजर बने थे उस टाइम, ठीक है ना। सो ऐसे काफिला बनता गया मीटिंग। अब चेक करो पहली मीटिंग में कितने लोग थे, और उससे कुछ टाइम के बाद कितने पर लोग हो गए। ये हमारा, हमने फिर ऑफिस ले लिया था, ऑफिस में नेटवर्क बढ़ता गया। फाइनली फिर मेरा असिस्टेंट मैनेजर हो गया, है ना। फिर मेरे को याद है, हम हमारा असिस्टेंट मैनेजर होने के बाद फिर हम गए, है ना, कि भाई चलो यार कहीं चलते हैं, पार्टी करते हैं, खा के आते हैं, है ना। तो फिर हम पार्टी करने गए, सपने थे यार ये हमारे, है ना। ये मनदीप सर के ऑफिस की फोटो है, पहली बार हम ट्रेनिंग लगाने गए थे वहां पे, ठीक है ना। सो फाइनली फिर हमारा मैनेजर लेवल हो गया, जो ड्रीम लेवल होता है।
बहुत अलग लेवल की फीलिंग थी कि हाँ यार इसी चीज के लिए आए थे, है ना। शुरू में तो मेरे को ये था कि अगर मेरा 2-3 साल में भी मैनेजर हो गया, मैं क्या मेरे लिए बहुत है, लेकिन मेरा 8 मंथ में ही मैनेजर हो गया था। वो इसलिए हो गया था, जो मुझे लगता है कि मैंने फॉरएवर से पहले थोड़ी जॉब कर रही थी, ठीक है ना। मेरे को पता लग गया था कि नहीं यार बाहर धक्के बहुत हैं, यहाँ पे काम कर ले। और दूसरी चीज ये भी थी कि मैंने फॉरएवर में से कोई छुट्टी नहीं करी थी, मैंने रेगुलर काम करा था। मतलब आप ये लगा लो वो टाइम ऐसे थे कि सिर्फ 3-4 घंटे सोते थे। 3-4 घंटे में से मैं 8 घंटे नौकरी करता था, मतलब 24 घंटे में से 8 घंटे नौकरी करता था, 3-4 घंटे सोता था, बाकी सारा टाइम फॉरएवर लिविंग चलती थी, है ना, दोपहर से लेके रात तक, ये चीज है। तो फिर रिकॉग्नाइजेशन हुई सक्सेस डे के अंदर, हमारे सुपर सीनियर है मिस्टर मनदीप कंबोज सर। सर ने बहुत कुछ सिखाया है हमें। अब इतने बड़े बड़े, अभी मैं आपको बताऊं, इस मीटिंग से आते आते ना मेरे ही भी रोड पे है ना थोड़ा गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। तो है ना, अब मैं रास्ते में ये भी बोल सकता था मेरी तो गाड़ी खराब हो गई, मेरी तो गाड़ी टूट गई, आगे से गाड़ी काफी लग गई, है ना। तो मैं रास्ते में कुछ भी बोल सकता था, मेरे को ठीक था, मैं कहा यार ठीक है लग गई है, चल तो रही है ना। अभी चल के ऑफिस में पहुंच गए, ऑफिस में पहुंच के ट्रेनिंग दे दी। आपको मेरे फेस पे बिल्कुल लगा कि हाँ यार अब नीचे मेरी गाड़ी लगी पड़ी है नीचे। अरे कोई बात नहीं है, लगती लुगती रहेगी गाड़ियां गुड़ियां है तो रोड पे चलेगी तो लगेगी कार, ये चीज है ना। उसको सजा के थोड़ी रखेंगे, ये चीज है कि उसकी धूप बत्ती वगैरह करो भाई, ये चीज है। तो ये तो चलता रहेगा, ठीक है ना, मेन चीज है। अब मैं वहां पे बहाना भी दे सकता था कि यार गाड़ी लग गई, और हाय मेरी तो गाड़ी टूट गई, ये हो गया वो हो गया, लगी लगागी 2-4 दिन में ठीक हो जाएगी, ठीक है ना, ये चीज है। तो ये जो हिम्मत है ना, ये तभी आती है जब आपकी अच्छी अर्निंग हो जाती है, ठीक है ना, जब आप एक अच्छी इनकम पे पहुंच जाते हो, ठीक है ना। सो काम करना पड़ेगा फिर इस तरीके से। और मीटिंग्स करी, मैनेजर के बाद नहीं रुके, मैनेजर के बाद लगातार काम करते गए। ऐसे हमने रात को 10-10 बजे भी मीटिंगें करी, 10-10 साढ़े 10 बजे, ये रात की मीटिंग देखो सबकी आंखें कैसे चमक रही हैं। ये मैं बिल्कुल साइड में खड़ा हूँ, ये मेरी सीनियर खड़े हैं जिन्होंने टर्बन पहन रखी है, इनके पीछे जो आंखें पिंक से कलर की शर्ट पहन रखी है वो मैं ही हूँ। ये रात के 10 बजे की मीटिंग है, आंखें देखो कैसे चमक रही हैं सभी की। आज के टाइम में लोगों को रातों से मीटिंग, ऑफलाइन मीटिंग है। मेरे घर से ये मीटिंग थी तकरीबन 50 किलोमीटर दूर, जहां मेरा गांव है वहां से 50 किलोमीटर हम मीटिंग करने गए थे रात को। वहां गांव में हमने मीटिंग करी थी छत पे बैठ के, ठीक है ना। सो दिल्ली गया मैं पहली बार, दिल्ली में जाके बहुत अच्छा सीखा, फिर काफिला बनता गया, ठीक है ना, ये चीज है। नेटवर्क बहुत बड़ा बड़ा होता होता, ठीक है ना, बहुत बड़ा हुआ, ठीक है ना। अब सिंपल सी बात यह कहते हैं यूर नेटवर्क इज यूर नेटवर्क, जितना बड़ा आपका नेटवर्क है उतनी बड़ी आपकी नेटवर्क है। चाहे आप किसी कॉलेज का चेक कर लो, बीटेक है कहीं पे, चाहे कोई बैंक उठा लो, कोई नाइकी, एडिडास, बर्गर किंग, मैकडोनल्ड्स, केएफसी, हर चीज का नेटवर्क है। हर चीज अगर नेटवर्क बना रहा है, जिस फोन में अभी आप ट्रेनिंग लगा रहे हो उसका भी नेटवर्क है, जिस लैपटॉप में आप ट्रेनिंग लगा रहे हो उसका भी नेटवर्क है, जिस एप्लीकेशन पे आप ट्रेनिंग लगा रहे हो यूट्यूब पे उसका भी नेटवर्क है, मैं आपको जूम पे ट्रेनिंग दे रहा हूँ उसका भी नेटवर्क है। भाई हर एक चीज का नेटवर्क है। सिंपल सी बात ये चीज है, पुराने टाइमों में छोटे छोटे शॉप्स होते थे, आज वो बड़े बड़े मॉलों में कन्वर्ट हो गए हैं। एक ही मॉल के बीच हर एक चीज घर की मिलती है, ठीक है ना, ये चीज है। एक ही मॉल के अंदर हर एक चीज घर की मिलती है, ठीक है ना, ये चीज है। सो सिंपल सी बात ये समझने वाली बात है कि आज हम फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में आए हैं, जहां पे 13 मई 1978 को हमारे बिजनेस की स्टार्टिंग हो गई थी। वर्ल्ड लीडिंग ब्रांड है हम, 162 प्लस कंट्री से ज्यादा कंट्रियों में हम काम करते हैं। एरिजोना यूएसए से हमारी स्टार्टिंग हुई थी, ठीक है ना। सो ऑलरेडी आपको सोच के देखो कि आपको कितना जबरदस्त प्लेटफॉर्म मिल रहा है, जहां पे हम एलोवेरा सेगमेंट के अंदर काम करते हैं, ड्रिंक्स के अंदर, ठीक है ना, ये चीज है। उसके बाद बी हाइव के हमारे प्रोडक्ट्स हैं, हनी आता है हमारा, बी पोलन प्रोडक्ट आता है, न्यूट्रिशन के हमारे पास कितने प्रोडक्ट्स हैं, स्किन केयर पर्सनल केयर के हमारे पास कितने प्रोडक्ट्स हैं, है ना, एडवांस केयर की स्किन केयर है, वेट मैनेजमेंट के हमारे पास कितने प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है ना। तो सिंपल सी बात ये है जी, ठीक है ना, कि इन प्रोडक्ट्स को अच्छे से यूज करो, और इन प्रोडक्ट्स की मार्केट के अंदर डिमांड है ही है, ठीक है ना, ये चीज है, इन प्रोडक्ट्स की मार्केट के अंदर डिमांड है ही है। बस इस ग्राफ को याद रखना है इस बिजनेस में, एन ग्राफ को, ठीक है ना। अभी आपकी स्टार्टिंग हुई है, थोड़े एफर्ट ज्यादा होंगे, रेड कलर वाली एफर्ट्स है, ग्रीन कलर वाली मतलब आपकी इनकम है। स्टार्टिंग में मेहनत ज्यादा लगेगी, इनकम कम हो गई, फिर मेहनत थोड़ी थोड़ी सी कम होगी, मेहनत इनकम थोड़ी सी बढ़ेगी, फिर बराबर हो जाएगा, मेहनत बराबर इनकम बराबर। उसके बाद मेहनत कम इनकम बहुत ज्यादा, पांच उसके बाद भाई मेहनत बहुत कम हो जाएगी, आपकी इनकम बहुत ज्यादा हो जाएगी। ये एन ग्राफ है, इस एन ग्राफ को आपने फॉलो करना है, ठीक है ना, अच्छे तरीके से, ये चीज है, ठीक है ना। हेल्दी एंड वेल्थी फ्यूचर,
हेल्दी एंड वेल्दी फ्यूचर अगर बनाना चाहते हो तो मेन बात है भाई, फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स के अंदर आप लोगों को अच्छे से दिल लगा के मेहनत करनी है, जो मेन चीज है। ठीक है ना, मेन चीज ये है। अब सिंपल सी चीज ये याद रखना, अपना दिमाग नहीं लगाना कुछ भी। राइट सिस्टम राइट टीम, आपको राइट सिस्टम फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स ने दे दिया, आपके सीनियर्स ने प्रॉपर अच्छे तरीके से दे दिया, आपने सिर्फ उस चीज को फॉलो करना है। ठीक है ना। फिर हमारे बिजनेस के अंदर आप सभी को पता है कि यहाँ पे कार प्लान भी हमें मिलता है। लेवल 1 में हमें 26,000 ईएमआई आती है, लेवल 2 में हमें सॉरी लेवल 1 में 26,000 हमें आती है, सेकंड में 39 और थर्ड में 52, और ये हमें 36 महीने आती है, 3 साल आती है। ठीक है ना, ये चीज है। तो सिंपल सी बात ये है भाई, बार 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 एक ही जगह जाके बात खत्म हो रही है, वो हो रही है आपके स्ट्रॉन्ग डिसीजन पे जाके, कि आपको स्ट्रॉन्ग डिसीजन एक बनाना है। ठीक है ना, आपको लर्न करना है कंपनी की बैकग्राउंड में, प्रोडक्ट्स में, मार्केटिंग प्लान पे रेगुलर ट्रेनिंग लगानी है। ठीक है ना, ये चीज है। सो अपनी डेली की वर्किंग चेक करनी है। ठीक है ना, मेन चीज है। सो प्रॉपर है ना, अपने अच्छे से डिसिप्लिन के अंदर काम करिए आप। ठीक है ना, मेन चीज ये है ना, गुड एटीट्यूड रखिए अपना। ठीक है ना, ये चीज बहुत जरूरी है। पॉजिटिव रहना है लाइफ के अंदर, नेगेटिव नहीं सोचना। ठीक है ना, अच्छी हैबिट्स बिल्ड करनी है अपने, है ना, हैबिट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, ये चीज है। कंफर्ट जोन से बाहर आइए, कंफर्ट जोन बड़ी अ, भयानक चीज है जी। ठीक है ना, ये चीज है। सो सिंपल सी बात है, अगर बिजनेस को बिल्ड करना है ना, तो आप अपने आप को बिल्ड कर लो, अपने आप को बिल्ड कर लोगे, आपका बिजनेस अपने आप बिल्ड हो जाएगा। ठीक है ना। पर एक चीज मैं आपको सभी को चीजों को बोलूंगा एक चीज के अंदर, कि आप लोगों का ना लॉन्ग टर्म विजन बहुत होना इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, आप अपने आप को इस चीज की क्लियरिटी दे लो कि भाई आने वाले टाइम के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग का फ्यूचर है, यस। ट्रैक सेलिंग की डिमांड है, यस। वेलनेस इंडस्ट्री का फ्यूचर है, यस। तो फिर क्या सोचना, इतना क्या ओवर थिंकिंग में फंसना, और ओवर थिंकिंग मत करो। एक ही चीज आपको बोलूंगा, एक खा जाएगी। ठीक है ना, ये चीज है, सारा टाइम वेस्ट चीजें हैं, है ना। अपना इंस्टाग्राम सोशल मीडिया सिर्फ इस पर्पस के लिए चलाओ कि मुझे पैसा कमाना है, बाकी सब वेस्टेज है वहाँ। आज के टाइम में लोगों के ना फोनों पे स्क्रीन टाइम 16 16 17 17 घंटे, 17 17 घंटे का स्क्रीन टाइम है मोबाइल फोन पे। और उसके बाद भी पता है क्या बोलते हैं, मेरे पास फॉरएवर करने का टाइम नहीं, मेरे पास अपना लाइफ सेटल करने का टाइम नहीं, मेरे पास अपने फ्यूचर का सोचने का टाइम नहीं। अरे भाई, फिर तेरे ये 8 घंटे तक सोता है, 16 घंटे तू मोबाइल फोन चलाता है। भाई मेरे तो कभी मोबाइल फोन से दूर भी होता है कि नहीं होता है, ये चीज है। हम कितनी अपनी एनर्जी वहां पे वेस्ट कर रहे हैं, ये चीज है। ठीक है ना। मेरा तो देखो क्लियर था भाई, मुझे जब 20 साल की एज में फॉरएवर मिली थी, मुझे उस टाइम एक चीज क्लियर थी कि मुझे पूरी जी जान लगा के मेहनत करनी है। मेरे को अपने यारों दोस्तों के साथ घूम फिर के अपना टाइम खराब नहीं करना भाई। ठीक है ना, ये चीज है, क्योंकि मुझे एक बात क्लियर थी कि ये टाइम मेरा एक क्वालिटी टाइम है, इस चीज को मैं संभाल गया तो मैं संभाल गया। ये आपके पास आपका क्वालिटी टाइम है, इसको संभाल लो भाई, इसकी कदर कर लो, इसकी वैल्यू कर लो। इसकी कदर करोगे, इसकी वैल्यू करोगे, जिंदगी आपकी बननी है यार, कोई आपके पड़ोसी की तो आगे बनेगी। आप मेहनत करोगे, मैनेजर आप बनोगे। आप मेहनत करोगे, पैसे आपको आएंगे। आप मेहनत करोगे, अचीवमेंट आपकी होगी। आप मेहनत करोगे, फायदा आपका है। आप मेहनत करोगे, बेनिफिट आपका है, तो किसी दूसरे को थोड़ी हो जाएगा। अगर इस दुनिया में अपना ही बेनिफिट नहीं करने आया, हमें अपना ही फायदा नहीं करने आया, तो फिर क्या बोले फिर वहां पे यार। ठीक है ना, फिर हम अपनी जिंदगी में सीरियस ही नहीं है, हमने अपनी लाइफ को मजाक में ले रखा है ना। जैसे इंस्टाग्राम पे एक रील देख ली, कल किसने देखा है आज की जिंदगी जियो, अरे बिल्कुल जियो यार, कौन मना कर रहा है आज की जिंदगी ना जियो, बिल्कुल जियो। पर ये मत बोलो कल का किसने देखा है, देखा है नहीं देखा है, पर सोचना तो पड़ता है ना कल का। अब एक चीज आप समझो, अगर आपके पेरेंट्स यही चीज बोलते, कल का किसने देखा है, आपको जन्म देते, हमें मुझे जन्म देते मेरे पेरेंट्स, मेरे को बोलते पढ़ ले अपने आप, हमने क्या लेना, पढ़ ले, कल का किसने देखा, ये नहीं यार चीजें हुआ करती। ठीक है ना, ये चीज है। जितनी की टेंशन ले, मतलब सोचने की लोड है, उतना जरूर सोचो। मैं ये नहीं कह रहा हर टाइम सोचते ही रहो, हर टाइम टेंशन में रहो, हर टाइम पागलों की तरह सोची चलो, ऐसा नहीं है। लेकिन मेन चीज ये है कि आपका सोचना जरूरी है। ये बहुत सही टाइम है आपके पास। हमारे इंडिया में एक वर्ड यूज होता है, ऐश करनी है, ऐश करनी है, ऐश करनी है। अरे बिल्कुल करनी है यार, लेकिन ऐश वो वाली करनी है जो ऐश होती है। इंग्लिश में ऐश को क्या बोलते हैं, राख बोलते हैं। जो पर्सन, जो बंदे
अपनी जिंदगी में खुद काम ना करके, खुद की इनकम पे काम ना करके ऐश करते रहते हैं, बाद में पछताते हैं भाई। बाद में कुछ चीजें फील होती हैं कि यार हमने उस टाइम को सीरियस क्यों नहीं लिया, हमने उस टाइम की वैल्यू क्यों नहीं करी। तो क्या हम भी उसी कैटेगरी में आना चाहते हैं कि हम भी बाद में रेगरेट करें, हम भी सोचे, हम भी स्ट्रेस में जाएं? अरे नहीं भाई, ये चीज है, ठीक है ना। आपको और बताता हूँ, उस दुनिया में एक सर्वे हुआ 2007 के बाद ना, लोग कम खुश रहना हो लग गए हैं। 2007 के बाद लोग कम खुश रहना स्टार्ट हो गए। आप बोलोगे क्यों, ऐसा क्या हो गया 2007 के बाद? मोबाइल फोन। 2007 से पहले लोग ज्यादा खुश रहते थे। आप बोलोगे नहीं यार, ऐसा तो नहीं है, इंस्टाग्राम पे तो सारे खुश दिखते हैं। अरे वहां पे सारे खुश दिखते हैं, ठीक है ना, लेकिन ये चीजें हैं, ठीक है ना, ये चीज है। अभी ना फेसबुक के जो एम्प्लॉयज हैं, उनको कुछ क्वेश्चनिंग करी गई, उनको एक बात पूछी गई, कह रहे फेसबुक की इतनी ग्रोथ हुई, क्या चक्कर है? उन्होंने एक बड़ा सिंपल आंसर दिया, कह रहे देखो सिंपल सी चीज है, जो पब्लिक है, जो चीज पब्लिक के लिए सही नहीं है, जो चीज पब्लिक के लिए सही नहीं है वो हमारे लिए सही है, और जो पब्लिक के लिए सही है वो हमारे लिए सही नहीं है। मतलब मैं आपको क्यों समझाना चाह रहा हूँ, आप बोलोगे मतलब मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि जो आप सोशल मीडिया चला रहे हो उसको बिजनेस पर्पस के लिए चलाओ, उसको पैसा कमाने के लिए चलाओ। टाइम वेस्ट मत करो उसके ऊपर, इन चीजों में मत फंसो, मेरा स्टेटस किसने देखा नहीं देखा, अरे जिसने देखा ना देख लिया, जिसने देखा नहीं देखा यार। ये चीज है, इतने पहले हम कि ये देखते फिरते हैं किसने हमारा स्टेटस देखा किसने नहीं देखा, इतने फिर ये हम, ये चीज है। तो इन चीजों से बाहर निकलो, किसने हमारा स्टेटस देखा किसने नहीं देखा, जिसने देख रहा देख लिया, जिसने देखा नहीं देखा यार, ये चीज है। या अगर उसको दिखाना ही है, उसका उसके पास चले जाओ, उसका मोबाइल फोन लो, उसका इंस्टाग्राम देखो, कह रहे मेरा स्टोरी देख लिया यार। तो ये छोड़ो यार, ठीक है ना, किसने देखा किसने नहीं देखा, फोकस वर्क, अपने काम पे फोकस रखो बस। आपको आज नहीं एक ना एक दिन पक्का रिजल्ट आएगा ही आएगा। याद रखना, रेगुलर एफर्ट्स विद पेशेंस, ठीक है ना, आपकी लाइफ चेंज होगी ही होगी, है ना। मेरी हो सकती है, आप सभी की भी होगी, सभी की होगी हमारी। बस हमने हिम्मत नहीं हारनी, रेगुलर काम करते रहना है, अपनी अपलाइन के साथ कनेक्ट बना के रखना है ना। जो जो आपको वो बोलते जा रहे हैं उस अकॉर्डिंग काम करते चलो, ठीक है ना, ये चीज है। मेहनत में कभी ढील मत बरतिएगा, कंफर्ट जोन कभी मत आने दीजिएगा, है ना। सोना ज्यादा नहीं है, कम सोना है, ठीक है ना। मतलब 8 घंटे सो लो यार, बहुत है, और क्या है, मतलब 10 10 घंटे 12 12 घंटे सोना है, ठीक है ना, ये चीज है। और 8 घंटे भी मैं आपको ये बोलूंगा कि अगर आप 40 क्रॉस हो गए फिर सो लो 8 घंटे। अरे अभी तो हमें ये चीज, अभी क्या हो गया मतलब हमें ये है। तो ये है, अपने काम पे अच्छे से फोकस करो, आपकी मेहनत करी, आने वाले टाइम में आपको बहुत अच्छी लाइफ देगी, ठीक है ना। टाइम फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्रीडम आप जल्दी अचीव कर लोगे अगर आपने रेगुलर एफर्ट्स करा, ठीक है। सो मेरी तरफ से ऑल दी बेस्ट है। अगली ट्रेनिंग है, फिर अगली ट्रेनिंग के अंदर फिर कभी मिलेंगे, ठीक है, जल्दी ही। सो डेली हमारी जो ट्रेनिंग्स होती हैं उनको अच्छे से फॉलो करिए, ठीक है, रेगुलर काम करिए, और जैसे जो जो चीजें आपके सीनियर्स ने आपको बताई हैं उनको जल्दी से डन करिए। सो ऑल दी बेस्ट है मेरी तरफ से जी, थैंक यू सो मच, जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, ठीक है जी, थैंक यू।